In today's extremely tough competitive world, people are continuously losing hope to survive on this planet due to various reasons like large population, tough competitions and various difficulties that children are facing. But gradually students are realizing that they want to pursue a career in which they are passionate about. But in reality, most of the students are unable to identify this passion. And for that, the most reliable way to find out their career passion, career counseling holds huge significance in the student's life, which can simply turn around the scenario upside down for them. करियर काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको करियर, शैक्षिक और जीवन के निर्णय लेने के लिए खुद को और काम की दुनिया को जानने में और समझने में मदद करेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्विच टू ग्रेट। सो स्विच टू ग्रेट एक्चुअली है क्या, विजन क्या है, इसके पीछे टीम कौन कौन है, आओ बात करते हैं। वेलकम सर। Thank you. हाउ आर यू सर? I'm good, Gurleen. सर, स्विच टू ग्रेट, व्हाट इट इज ऑल अबाउट? So, Switch to Great, basically, Gurleen, is a platform that we have created to help people find their true potential. It's a career counseling platform. It helps people make more informed decisions about their careers, about their strengths, about their skills, what courses to pursue, what professional careers to pursue, what kind of universities or destinations will be best suited for them. तो ये सारी चीज़ें सो दैट लोग बाद में रिग्रेट ना करें अपने करियर डिसीजन। हम लाइफ में कितनी बार लोगों से मिलते हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन कोई और ली होती है और उसके बाद वो रियलाइज करते हैं दिस इज नॉट द राइट करियर फॉर मी, आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स, एंड दे फेस some challenges because of that. I'm not saying that they should not switch the career. Once you realize that this is not for you, it is always better to move on to the next thing. But the question is why to make that mistake? तो अगर एक सही टाइम पे आपको राइट गाइडेंस इन अ साइंटिफिक मैनर मिल जाए तो देन यू हैव बेटर चांस टुवर्ड्स अचीविंग दैट ड्रीम सक्सेस दैट यू वांट। सर, जैसे आपने बताया कि करियर काउंसलिंग हमारे टाइम पे ये होता था कि मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स का तो हम सोचते ही नहीं थे, और जो घर वालों ने बता दिया या आसपास का जो प्रेशर है, जो कजन्स कर रहे हैं तो वो ये कर रहे थे, तुझे भी यही करना है। आज के ज़माने में करियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है? Look, चाहे आज का ज़माना हो चाहे पहले का, करियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। Gurleen, you and I are examples. You did your masters in biotechnology, right? And then you became a TV journalist, right? You love to be an anchor. Absolutely. And one thing could have been that you could have taken a mass communication program. Absolutely. That would have definitely made your transition easy into this line. And you might have faced some anxiety also. जब आप इतने साल पढ़ते रहे आपको लगता होगा क्या मैं यही कर रही हूँ, क्या ये सही कर रही हूँ, और वो फिर जो आप अपना बेस्ट है दे भी नहीं पाते। सो करियर काउंसलिंग, अगर मैं करियर कोचिंग, लाइफ कोचिंग, इफ आई लीव आउट दिस सेमेंटिक्स, बेसिकली इट इज अबाउट गिविंग एन अनबायस्ड व्यू टू समवन in a rigorous and scientific manner, that what are their strengths, what is their personality type, what are their aptitudes, and so that they make a more informed decision about their life based on that. तो एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम उतना ही ज़रूरी है जैसे लेट्स सपोज कि करियर इज, यू आर ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ करियर। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यू आर ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ करियर। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट यू हैव अ करियर ऑफ अ स्टूडेंट। When you are a parent, your career as a parent is there. When you become a grandparent, then also you have a career as a grandparent. फिर आप कहीं जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, you are always in some kind of career. So you pursue one or you transits in different careers, but you are always pursuing some kind of career. So that career is like your life. So taking risk with your career is like taking risk with your life. Now imagine you get into an accident and you need blood. तो किसी को जब ब्लड दिया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसे तो नहीं रैंडमली कहते कि ये रंग अच्छा लग रहा है इस पे ये चढ़ा देते हैं। सो इट इज फेटल। सो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है कि भाई ये अच्छा लग रहा है, ये चल रहा है, आजकल ये करियर चल रहा है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चा या वो इंसान जिसके करियर की बात हो रही है उसको भुला दिया जाता है। कोई बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मैं आफ्टर एजुकेशन की भी अगर बात करूं, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके घर वाले कहते हैं बिना जाने कि इसमें बहुत रिस्क हैं, तो तेरे को सैलरी मिल रही है तो बस ये करता रहे। उसकी चाहे हेल्थ खराब हो रही है, वो मेंटली इज अंडर प्रेशर, ही इज नॉट लाइकिंग द एनवायरनमेंट, इट डज नॉट मैटर। सो चेंज से लोग डरते हैं और एक सेफ्टी नेट ढूंढते हैं। सिमिलरली इन एजुकेशन कि अगर तुमने आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया तो व्हाट विल पीपल थिंक, तुम्हारी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियरिंग, और कई बार बच्चे भी खुद
यू नो सेमी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं. दे सी समथिंग ग्लैमरस. उनको लगता है अच्छा आज मैंने एक बहुत ही सुंदर फरारी देखी, आई वॉन्ट टू बी ए कार डिजाइनर बिकॉज इट साउंड्स गुड टू से. और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनका वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड नहीं है, वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं है, वो तो बस उनको कार पसंद आई थी. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये डिसीजन सोच समझ के लिया जाए, एक साइंटिफिक मैनर से लिया जाए. यू नो यू शुड हैव योर गेट योर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग डन, योर पर्सनैलिटी प्रोफाइल डन, योर करियर इंटरेस्ट इन्वेंट्री डन, एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड योर वैल्यूज, योर नीड्स. अगर उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा तो the chances are that you will be lot more successful, you will be lot more happier, and you will be able to achieve the respect and recognition in those fields. और अपने आप सेफ्टी आ जाएगी. जब आप उस काम में हो जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, आप उसमें अच्छे होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. तो जब आप काम में अच्छे नहीं हो तो आपके करियर में हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंस इज वेस्टेज ऑफ मनी. कितने लोग ग्रेजुएशन सर्टन एरिया में करते हैं, पीजी भी करते हैं, फिर उनको बस सेकंड करनी पड़ती है. टुडे क्वालिटी एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली. तो हम करोड़ों रुपए एजुकेशन पे खर्चते हैं, बट पेरेंट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, समहाउ बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी, दे आर वरीड कि भी हम करियर काउंसलिंग पे 50,000 60,000 या समटाइम्स इट इज इवन लेस क्यों खर्च करें. दे विल स्पेंड. और अगर आपको सही टाइम पे काउंसलिंग मिलती है, यू कैन गेट राइट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स, यू विल आइडेंटिफाई द बेस्ट यूनिवर्सिटीज. और career counseling does not end with just giving this information. A good career counseling program will help you, build those habits, try to understand your learning style, and it will keep you informed whatever is happening कि भाई ये एग्जाम डेट आ गई है, इसकी ऐसे ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हैं, ये आपकी वीकनेस है. जब आप अपना पूरा SWOT एनालिसिस कर लोगे, इट विल टेल यू कि दिस इज योर वे ऑफ लर्निंग, दीज आर द हैबिट्स यू नीड टू डेवलप, दीज आर द रेफरेंस मटेरियल यू नीड टू स्टडी. ऐसे आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखिए सो दैट यू गेट द राइट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप. सो करियर काउंसलिंग अगर मैं समराइज करूं तो आप लेट्स से एक पार्टी दे रहे हैं, बहुत बड़ी आपके घर में फंक्शन है, आपने उसमें 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, पर आप कहते हो कि मैं 100 रुपए का नमक नहीं लेके आऊंगा, मैं वैसे इतनी अच्छी चीजें लेके आ रहा हूं. तो करियर काउंसलिंग वो नमक की तरह, उसके बिना आपका पूरी की पूरी पार्टी अधूरी रह जाएगी. वो 100 रुपए की तरह, बिकॉज दैट इज हाउ लिटिल इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड. और मैं करोड़ों रुपए की एजुकेशन को छोड़ भी दूं, जो इतने साल वेस्ट हो जाते हैं लोगों के, वो अपने करियर में कुछ साल पीछे रह जाते हैं. तो थ्रू आवर करियर काउंसलिंग एट स्विच टू ग्रेट, वी वांट पीपल टू बी एट देयर बेस्ट, एट देयर मोस्ट एफिशिएंट. सक्सेस आप थ्रू लीस्ट रेजिस्टेंस करो. चैलेंजेस विल बी देयर, पर क्या वो चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपको आगे लेके जा रहे हैं, या वो चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं. ये डिफरेंस एक स्विच टू ग्रेट की करियर काउंसलिंग क्रिएट करती है. एक सर, आई एम रियली इंक्विजिटिव अबाउट द सेम. जैसे आपने बात की कि किसी भी पर्टिकुलर करियर में कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जब हम अनसेटिस्फाइड होते हैं और अनहैप्पी होते हैं. तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो हमें पता लगे दिस इज़ नॉट द डायरेक्शन, वी रियली नीड टू चेंज द डायरेक्शन? लुक, इफ यू आर कंसिस्टेंटली, देयर आर मल्टीपल इंडिकेटर्स फॉर दिस. पहली बात है कि आप पहले तो ये सोचो कि मैंने ये करियर लिया क्यों. वॉज इट कि भाई यही अवेलेबल था या कन्वीनियंट था, या जैसे आपने बोला जी हमारे कजन्स, हमारे भाई दोस्त क्या कर रहे हैं तो हम भी उसी में घुस गए, या ऐसे उड़ती उड़ती खबर आती कई बार आजकल ये करियर बहुत चल रहा है, इसमें बड़ी ग्रोथ है. तो जब आपने ऐसे अनसाइंटिफिक वे से अपना करियर चूज किया है, राइट, देन दैट इज योर फर्स्ट अलार्मिंग बेल कि मैंने करियर लिया क्यों था. आज मैं परेशान हूं तो मैंने करियर लिया क्यों था. देन सेकेंड पार्ट ऑफ दैट इज कि आपको बात, जो काम आपके पीयर्स को जल्दी समझ आता है, आपको स्लोली समझ आता है. मे बी आपका एप्टीट्यूड अलग है, आप किसी और चीज के लिए बने थे, आप उस चीज में हैं, एंड यू आर फीलिंग लाइक एन इडियट. देन आपका लेट्स से समझ भी आ रहा है पर आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा. यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ. आप थके हुए वापस आते हो. मैं जब छोटा था, आई वॉज अ वेरी नॉटी किड. तो मेरे मम्मी कहते थे कि भाई, I don't believe this. You don't believe I was naughty? All right. So that's good. So when I was a kid, whenever my dad used to come, my mom used to tell me कि भाई तेरे आगे हाथ जोड़े, अब तू कोई शरारत मत करी, तेरे पापा ना बहुत ही थक के और परेशान होके वापस आते हैं ऑफिस से. तो मैं उनको कहता था ये परेशान होने कहाँ चले जाते हैं रोज. तो वो डिफरेंस है एक जॉब और करियर में. जब आप ऐसे रोल में हो कि विच इज जस्ट टू पे द बिल्स, राइट, क्योंकि आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू वांट टू वर्क हार्ड, तब आप परेशान होके आओगे. देन यू आर इन अ करियर, ऐसा नहीं कि उसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे, मुश्किल नहीं आएंगी, बट यू विल फील एम्पावर्ड विद दस चैलेंजेस. यू विल फील कि मैंने जब ये चैलेंज सॉल्व किया, आई हैव बिकम बेटर, आई गेट द रिवॉर्ड्स फॉर इट. तो ये डिफरेंस है एक करियर और जॉब के बीच में. और जब आपकी काउंसलिंग
और इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग. करियर काउंसलिंग शुड बी अ रेगुलर थिंग. यू शुड हैव मेंटोर्स. हमारे ग्रंथों में लिखा है कि लाइफ में गुरु होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर आपने गोविंद को भी पाना है. बिकॉज उनके एक राइट मेंटोर के बिना आप द चांसेस ऑफ योर सक्सेस रिड्यूस ट्रिमेंडसली. आप कोई भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग ले लो, दे ऑलवेज हैव कोचेज एंड मेंटर्स, पर्सनल कोचेस, बिकॉज दे आप खुद आपके अपने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, राइट? और अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो उस फील्ड में, मे बी यू आर समवन इज अ वेरी गुड डॉक्टर, but they don't understand everything about other careers. But career counselors understand about lot more careers and they are always in touch with what is happening at the current stage, right? आजकल currently क्या चल रहा है ये उनको पता होता है, क्योंकि डिसीजन जब एक पेरेंट ने डिसीजन लेना है अपने बच्चे के लिए, तो डिसीजन इज नॉट अबाउट नेक्स्ट 5 years ऑफ एजुकेशन, इट इज अबाउट हिज नेक्स्ट 50 years. उसकी लाइफ के अगले 50 साल कैसे निकलेंगे. तो आज का जो डिसीजन है उसका इंपैक्ट अगले 50-60 साल तक रहना है, फिर उसकी पूरी फैमिली, उसकी इनकम पे रहना है. और जो छोटा सा डिफरेंस होता है ट्रेजेक्ट्री में, उसको अगर कंपाउंड कर दिया जाए तो 50 साल बाद उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा नजर आता है उसकी टोटल एनुअल इनकम्स में. अगर आप अच्छी जगह से पढ़े हो अपने इंटरेस्ट के एरिया में, तो आपके करियर में ब्रेक्स कम आएंगे, आपको प्रमोशन ज़्यादा मिलेंगी. तो आज से लेट्स से इमेजिन 30 साल बाद आपकी सेविंग्स, इनकम्स, यू नो, द ग्रोथ, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू विल हैव, इवन योर हेल्थ. अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रोज परेशान रहते हो, तो चांसेस आर कि आपकी हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो जाएगी. तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है. सो इट इज़ required that you should get the right career counseling. सर मैं पढ़ रही थी करियर स्वीट स्पॉट, काफी फैंसी टर्मिनोलॉजी है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो करियर स्वीट स्पॉट बेसिकली इज अ टर्म दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दी. देखो, हर एक के लिए सिर्फ एक ही करियर नहीं बना होता. ये भी एक फॉलिसी है कि भी एक आइडियल करियर है आपके लिए. यू हैव टैलेंट्स एंड यू कैन अप्लाई इट इन मल्टीपल एरियाज. तो करियर स्वीट स्पॉट वो एरिया है जो इंटरसेक्शन है आपके, पहले तो एप्टीट्यूड, टैलेंट्स. किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, किसी की वर्बल एबिलिटी अच्छी है, किसी का न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है. तो बेसिकली आपका IQ समझ लीजिए. एक वो है एक पार्ट आपका एप्टीट्यूड. सेकंड पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी. थर्ड पार्ट है आपके अपने इंटरेस्ट, कि आपको क्या अच्छा लगता है. तो इन तीनों का जो ओवरलैप है, जहां पे ये तीनों चीजें ओवरलैप करती हैं, वो है करियर स्वीट स्पॉट. बैट का भी एक हिस्सा होता है ना, जब वहां पे बॉल लगती है तो बिना कम जोर लगाए वो बाउंड्री तक जाती है. तो जब आप अपने करियर स्वीट स्पॉट वाले एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो जो आपको सक्सेस मिलता है ना, चैलेंजेस आते हैं अगेन, पर उस चैलेंज में जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा होता है. शॉट मारने के लिए अगर आप एफर्ट करते हो, तो अगर वो स्वीट स्पॉट पे हिट होगा तो वो बहुत दूर तक बॉल जाएगी. अगर वो दूसरे एरिया पे हिट होगा तो वो बहुत पास ही रह जाएगी, राइट? सो ये लीस्ट रेजिस्टेंस से अगर आपको सक्सेस अचीव करना है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम और एफर्ट लगवाओ टू अंडरस्टैंड योर ओन करियर स्वीट स्पॉट. सर, ये करियर स्वीट स्पॉट अगर आइडेंटिफाई करना है और बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव काउंसलिंग के लिए स्विच टू ग्रेट की जो टीम है, उसके बारे में बताइए. सो बेसिकली if I read out to you the mission statement of Switch to Great, you know, Switch to Great बनाने का हमारा पर्पस था to help people, you know, find their best version, their true potential, so that they make best career choices, best life choices. So with that vision we started, and we are helping people whether they are in school, college, or even young professionals. They come and work with us to basically redefine their career path, to find a more fruitful career path for themselves where they achieve more success in life. We are a team from IIM Ahmedabad and UCLA, or we have been doing it for last so many years. So we have helped thousands of students, thousands of institutes to figure out कि किस बच्चे के लिए कौन सा career path है, किस तरह की हैबिट्स इनकलकेट करने की जरूरत है. एंड वी इवन हेल्प टीचर्स, यू नो, वी ट्रेन टीचर्स सो दैट व्हेन दे मैनेज द क्लास दे आर मोर इफेक्टिव. ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स सो दैट दे मेक बेटर डिसीजंस विद इन द क्लासरूम. अगर एक सिचुएशन आती है एक बच्चे के मोटिवेशन के लेवल को लेके, उसके इंटरेस्ट को लेवल, उसको कैसे हैंडल करना है. So how to identify so these kind of workshops we do at different institutes across India. And one thing that keeps us going is that when the people who have been successful through our programs, when they go to different institutes like IIMs, IITs, or they join the top international universities, the kind of regard and the kind of, you know, gratitude that we see in them, that is our biggest victory. और अगर आपने एक competent, you know, society बनानी है, एक successful nation बनाना है, your people have to be self aware. Your people have to be self aware. और अगर लोग self aware होंगे,
वो अपने आप बेटर डिसीजन लेंगे अपने लिए भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए। दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल। कोई भी टॉप एथलीट आप ले लो, कोई भी टॉप परफॉर्मर किसी फील्ड में ले लो, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी कमियां पता होती हैं और उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं। दैट इज द गोल ऑफ स्विच टू ग्रेट। वी वॉन्ट यू टू मूव फ्रॉम अ गुड करियर टू अ ग्रेट करियर। जी सर, सो करियर काउंसलिंग इज वेरी क्रिटिकल एंड स्विच टू ग्रेट इज प्लेइंग एन इंडिस्पेंसिबल रोल. More power to you, sir. Thank you.